यंगर पॉपुलेशन में कारण आजकल दिख रहा है विद द चेंज इन द लाइफस्टाइल हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, दे कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू हार्ट फेलियर। किसी की सडन डेथ भी हो गई है, हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से हो गई है। कि इंडिया में हर साल 5 से 15% पीपल आर हैविंग हार्ट फेलियर। व्हाट इज द आइडियल एज पॉपुलेशन ने हार्ट रिलेटेड स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज दैट एटलीस्ट वंस इन योर स्कूल 11th एंड 12th तभी आपको, क्योंकि मोटापा काफी ज्यादा है। स्कूल स्टडीज हैव शोन 60 to 70% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव ओबेसिटी। व्हाई अर्ली 30s लेट 20s हार्ट फेलियर क्यों बढ़ते जा रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। एक तो डाइटरी हैबिट्स चेंज है, एक तो आप देखें कि भाई हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं तो उबर कर लेते हैं। इन सब वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। साथ ही साथ वी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन इंडिया। Do you know 1 in 5 people will die early because of cardiovascular disease, which claims more life than cancer and chronic respiratory diseases combined? 80% of the cardiovascular disease and stroke cases are preventable, which is why on this 29th September, we celebrate World Heart Day to raise awareness on CVDs and most importantly, how to take care of your heart. The theme for World Heart Day 2025 is Don't Miss a Beat. Loved ones are really missing out on their time which they should get to spend together because of early death from CVDs. Which is why this 29th September, we will go and tell the world that don't miss a beat. Today, in another episode of Beyond the Pill, we will be talking about heart failure, which is often known as a silent killer. I am your host, Dr. Chetna, and to help us understand this topic better, joining us today is an interventional cardiologist, Dr. Imran Ahmed. Doctor is an associate professor in Cardiology Medical College and a consultant at Woodland Hospital, Kolkata. So let's give him a warm welcome and understand कि heart failure होता कैसे है, what are its signs and symptoms, and what are the practical tips that we can take to protect our heart in our daily lives. Hello, doctor, and welcome to our show, which is Beyond the Pill. Like a very big thank you for taking us time for this show. How do you feel about it? I mean, I know that you enjoy all these things, but still, I want to know how excited are you? It's a pleasure to be part of any program which has social relevance. Yes. Especially cardiac related deaths, which are increasing in India. Every decade we are seeing the more younger populations are getting involved. The death rate is high. Persons are getting affected in those age in which they need to work and earn and be part of their lives with their family. They're getting affected. So any message to the population, that's always welcome, and thank you for making me part of this program. So I'm very excited to know that, just as I had discussion with you, if not a doctor, what profession would have you chosen? Well, right from my college days, if you say, I like public speaking. So whenever I have got an opportunity, I have always spoken. So बोलना अच्छा लगता है। घर के अलावा मैं हर जगह बोलता हूँ। घर में तो वाइफ बोलती हैं। Anyway, so I think that way, if public speaking is my hobby and passion, and therefore, if with it, if we can give a social message, there's nothing better than this. So I am sure that with this interest of yours in public speaking, as well as your specialty in cardiology, no one could have been a better guest for us. So it's a really pleasure for us, sir. So our today's topic is about heart failure. जैसे कि आप जानते हैं कि इसके incidences अभी बहुत बढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले तो let's just start with understanding कि why, जैसे कि अभी आपने बताया कि incidences in younger population के बहुत ज्यादा हो गए अभी. So what do you think is the cause of it? तो चेतना, देखिए, हार्ट फेलियर अगर यंगर पॉपुलेशन में बढ़ रहा है और हम लोग सोशली जब हम लोग मैसेज दे रहे हैं तो भाई ये तो वो हार्ट फेलियर है नहीं जो कि भाई एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के टूटने से हो रहा है, वो तो एक किस्म का है। बट जो हार्ट फेलियर जो इम्पैक्ट कर रहा है, जो कार्डियोलॉजी के लिए रेलिवेंट है, कि हार्ट जब काम नहीं कर पा रहा है, द हार्ट्स primarily its main function is to pump the blood to the organs of the body. Correct. And to receive the non-purified blood. Correct. And then that's also a function. So it's basically it's a pumping function as well as the relaxing function. जब ये नहीं हो पा रहा है तो हार्ट फेलियर होता है। यंगर पॉपुलेशन में कुछ कारण आजकल दिख रहा है, स्पेशली विद द चेंज इन द लाइफस्टाइल हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स. A lot of patients are getting heart diseases like blood pressure, sugar earlier. So they contribute directly to heart failure. Understood. So when you talk about the term heart failure,
वो इतना अलार्मिंग लगता है, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हार्ट फेलियर मींस हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया है. This is how they take it, heart failure as a term. What is your, I mean, what is a cardiologist idea about it? देखिए, चलना ही जीवन है और रुकना मौत की निशानी है. तो हार्ट अगर बंद हो जा रहा है यानी यू आर दैट इंडिविजुअल, दैट लिविंग बॉडी इज गोइंग टू डाई. Correct. सो इसका ये मतलब है कि हार्ट जब फेल हो रहा है, it does not mean that it is stopping. It means it is not functioning to its capacity. Okay. So Okay. therefore there is a reduced pumping. So with that, उनका अगर हार्ट फेल होता है तो you get a lot of symptoms. Correct. Correct. So if you want to ask what are the symptoms, Yes. early symptoms, Yes. early warning signs कि किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, Yes. तो सबसे पहला अगर सिम्टम अगर आप कहें तो वो होगा कि आप जो नॉर्मल जिस स्पीड से काम कर रहे थे वो आप उसको चेक करना पड़ रहा है, उसमें आप हाँफ जा रही हैं. जी. सो इट्स कॉल्ड ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन. Okay. आप अगर 2 फ्लोर नॉर्मली चल पा रही थी, अचानक लास्ट 1-1.5 महीने से आप 1 फ्लोर के बाद ही आप हाँफ जा रही हैं. Okay. बाजार हाथ में लेकर जा रही हैं तो हाँफ जा रही हैं. Okay. तो ये हुआ ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन. दैट्स द फर्स्ट सिम्टम. Okay. Understood. एसोसिएटेड वुड बी फटीग माइनर डिफरेंस होता है ब्रेथलेसनेस, यानी कि आप थोड़ा वीकनेस फील कर रही हैं कुछ काम करने के बाद, जो कि Okay. पहले नहीं हो जी. रहा था. तो ये 2 मेन सिम्टम्स है. बाकी जब ये प्रोग्रेस होता है हार्ट फेलियर तो पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, पेट में पानी, पेट फूल जाना ये होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली जब ज्यादा प्रोग्रेस हो, भूख भी कम हो जाती है, एपेटाइट लॉस होता है, वेट लॉस होता है. दीज आर प्रोग्रेसिव symptoms. Okay. So, when you talk about heart failure, हमारे population या we all think कि किसी की sudden death भी हो गई है तो हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से हो गई है. So there is no proper discrimination between कि cardiac arrest exactly क्या है और heart failure exactly क्या है. चेतना, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है. देखिए, ये इसलिए क्यों है मैं बता रहा हूँ कि हार्ट फेलियर एक तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि इंडिया में हर साल काफी परसेंटेज ऑफ लोग हार्ट फेलियर 5 से 15%, जो मैं बताऊंगा क्यों 5 से 15, इतना ज्यादा परसेंट ऑफ पीपल आर हैविंग हार्ट फेलियर. अच्छा, हार्ट फेलियर एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जैसे कैंसर हुआ, जी. ये प्रोग्रेस करता है, जी. ये भी प्रोग्रेसिव डिजीज जी. है, बट इसका इलाज भी है. Correct. तो ये चीज है. अब हार्ट फेलियर क्या है और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक होता है कि हर जो ऑर्गन है बॉडी का उसको एक ब्लड सप्लाई चाहिए. Okay. हार्ट को भी अपना ब्लड सप्लाई चाहिए. Correct. तो ये जो नसें हैं जो ब्लड सप्लाई देती, इसमें अगर ब्लॉक आ गया तो हार्ट का वो एरिया डेड हो जाता है. True. तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक, जो दर्द होता है सीने में दर्द. अब हार्ट अटैक से क्या हुआ, हार्ट का पंपिंग भी कम हो सकता है. तो हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर हो सकता है, मगर हार्ट फेलियर कई और सारे कारण. Okay. सो हार्ट फेलियर में कोई भी ऐसा कंडीशन, कोई भी ऐसा कारण जैसे हार्ट का पंपिंग कम हो, वो हार्ट फेलियर हो गया. Okay. और हार्ट अटैक हुआ है जब हार्ट का अपना ब्लड सप्लाई, नस का सप्लाई जो आ रहा है ब्लड लेकर वो आ रहा है, उसमें ब्लॉकेज आ गया. हार्ट का ये पेन शुरू हो जाता है कि हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, वो पेनफुल एक्सपीरियंस है. तो हार्ट अटैक एक हुआ. हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर हो सकता है. हार्ट फेलियर में कई सारी कंडीशन से हार्ट फेलियर हो सकता है. सडन कार्डियक डेथ, ये कंडीशन हो रहा है. कभी देख रहे हैं कि जिम में सिंगर्स, एक्टर्स, वो डेथ हो जा रहा है. तो सडन कार्डियक एक कंडीशन है जिसमें से कि अचानक हार्ट अटैक विदिन, पहले 24 घंटा पहले तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक वो हार्ट अटैक होकर विदिन फ्यू आवर्स मर जा रहा है. तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट जब हो रहा है, ये कुछ जो हार्ट, क्योंकि देखिए हार्ट का एक फंक्शन मैंने बताया पंप करना है, दूसरा इनका अपना रिदम है हार्ट का. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक रिदम है, 70, 72 बार, 75 बार बीट कर रहा है. अब ये रिदम का भी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी प्रॉब्लम हो गया तो अचानक इतना जल्दी बीट करता है कि आपको अगर या तो हार्ट को आपको रिससिटेट करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेट करना है, या फिर शॉक देना है, तभी उस रिदम को चेक कर सकते हैं. Understood. तो इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. आप अगर एयरपोर्ट में देखें, वो फैसिलिटी रहता है एयरपोर्ट, इसमें जाके अचानक किसी को अगर वो आप शॉक दे दे, इलेक्ट्रिक शॉक, तो फिर आप बच सकते हैं. तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ हार्ट का प्रॉब्लम, जिसको रिदम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जिसमें कि सडन कार्डियक डेथ हो सकता है. Understood. So these are 3 different terms, sometimes related: heart attack, heart failure, or sudden cardiac arrest. Okay, they are all 3 different. Different. It's just that one can lead to another. One can lead to. Okay. Ultimately, सब में heart failure हो जाएगा, ये भी हो सकता है. Correct. And then now, जैसे कि भी आपने symptoms के बारे में भी mention किया, तो when you talk about these symptoms, जैसे कि fatigue या सीढ़ी चढ़ने के बाद woman is feeling कि अब मैं पहले जैसे नहीं चढ़ पा रही हूँ. Right. तो उन लोग ये सब चीजें बहुत रेलिवेंट करते हैं कि शायद अभी पोस्ट मेनोपॉज ऐसा हो गया है, या फिर आई एम हैविंग अ मेंस्ट्रुएशन इसलिए ऐसे शायद मुझे फील हो रहा है, या मे बी सम गट रिलेटेड इशू है, या मे बी सम एंजाइटी इशू है. सो दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये
हार्ट से भी रिलेटेड बॉडी सिम्टम्स दिखा रही है। हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है कि हम सैक्रिफाइस करना सीखे। आजादी भी सैक्रिफाइस से मिली है हमें, और सैक्रिफाइस तो अब हमेशा हम लोग कुछ कुछ जस्टिफाई कर देते हैं, फिर चलो ये तो भाई भगवान की तरफ से ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ठीक हो जाएगा, हम लोग ज्यादा पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भाई चलो ठीक हो गया। लेकिन ये सब के अलावा जो जरूरी चीज है कि आप, अगर आपको अचानक कुछ चेंज लग रहा है कि 1 महीने पहले आप जो दूसरे माले तीसरे माले में नॉर्मली चल रहे हैं, मगर अब आप अगर हाफ जा रहे हैं, तो इसको अब बेटर होता है भाई कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कोई भी सिम्टम में अगर चेंज हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो कहता है कि नहीं भाई आप ठीक है, भाई नहीं सिर्फ हल्का सा मोटापा की वजह से हो रहा है, तो आप पे वेट कम कर लो, वो ठीक है। लेकिन अगर कुछ डॉक्टर साहब के पास टेस्ट होंगे, वो और कुछ और क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, जिससे पता लगेगा कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम आया है कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू जस्टिफाई सिम्टम्स। खासकर लेडीज जो रहती हैं वो सप्रेस कर देती हैं, भाई जेंट्स काम में जा रहे हैं तो चलो भाई उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी ऐसे कोई नुस्खा घर में लेकर वो अगर ठीक हो जाए, पर ये होता नहीं। सो सर व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी सिम्टम जो परसिस्टेंट है, जैसे कि आज मैंने 2 माला चढ़ने की या 1 माला चढ़ने की कोशिश करी है और मैं हाफ रही हूँ, दिस इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन द वुमन नीड्स टू विजिट अ डॉक्टर, या फिर इट्स जस्ट एक बार ही करने पे अगर उसको लग रहा है कि आज ही मुझे इतना डिफरेंस फील हो रहा है? देखिए, अगर कोई सिम्टम है कि आप अगर आपको चलने में हाफ जा रही हैं, तो उसका तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। आप एक तो हल्का एक मोटापा है, वो अगर डॉक्टर बताए नहीं आपके मोटापा की वजह से हो रहा है, तो आप उसको कम। मगर अगर कार्डियक कोई कंडीशन है, तो ये तो बढ़ता जाएगा। करेक्ट, ये तो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आपको जो लाइफस्टाइल चेंजेस अगर डॉक्टर साहब कहते हैं वो करेंगे, नहीं तो दवाई भी लेनी पड़ सकती है। करेक्ट। एंड ये जो सिम्टम्स है, ये मेन एंड वुमेन दोनों में सिमिलर होते हैं कि मेन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स? देखिए, जो कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो हार्ट अटैक रिलेटेड हार्ट फेलियर होते हैं, वो देखा जाता है कि मेन में जल्दी आता है, फीमेल्स में मेनोपॉज यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, उसके बाद वो पीरियड में जब तक मेंस्ट्रुअल वो साइकिल चलता रहता है 45-50 इयर्स एज तक, थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है फीमेल्स को, जो हार्मोन्स है। मगर जैसे ही हार्मोन कम होते जाते हैं आफ्टर 45-50 इयर्स ऑफ एज, पोस्ट मेनोपॉज, तो वो प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो तब आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज मेन और फीमेल दोनों में एक ही तरह का रिस्क हो जाता है। सिम्टम्स भी सेम दिखते हैं? सिम्टम्स तो सेम ही दिखेंगे। एंड देन व्हाट डू यू फील कि इतने सारे जो ये सिम्टम्स, जैसे कि अगर सडन हार्ट फेलियर अगर समझो किसी को है, जैसे कि आपने बोला कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है, एंड उन लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये इज इट रियली बिकॉज ऑफ एसिडिटी या सम काइंड ऑफ एंजाइटी, या फिर दिस इज रियली सीरियस एंड इमरजेंसी है कि आप डॉक्टर को जाकर भी विजिट करो? देखिए, ये तो आपने प्रश्न किया कि भाई हार्ट अटैक रिलेटेड कैसे, तो हार्ट अटैक एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें 5% लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ही डेथ हो सकता है, और 15% पहले महीने में मोर्टेलिटी माने डेथ रेट है। तो आपको तो हॉस्पिटल जाना है, दवाई भी लेनी है, एस्पिरिन वेस्पिरिन जो भी जल्दी से दवाई लेनी है, तो आपको पहले ये देखना है ये दर्द हो रहा है, इससे पहले आपको चलने में होता था कि नहीं। हार्ट अटैक का दर्द क्या होगा, एट रेस्ट भी हो जाएगा आपको रात को या कभी भी एट रेस्ट। तो ये दर्द जो पहले 5 मिनट 7 मिनट है, तो 10 मिनट हो गया कि नहीं। अगर ये दर्द ज्यादा हो रहा है, तो आपको अवेयर रहना है। साथ ही साथ आपको ये रियलाइज करना है कि आपके पास हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? हाई प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है कि नहीं, स्मोकिंग हैबिट्स है कि नहीं। अगर इसमें से 1 या 2 या 3 अगर है, और एज के साथ जितने एज है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये है तो आपको चेस्ट पेन को उसको रेलिवेंट समझना पड़ेगा, और जितने जल्द हो आपको एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाकर ईसीजी करवाना है। और ये तो हो गया भाई हार्ट अटैक का मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे कि आपके लाइफ का जेन्युइन रिस्क हो जाता है, सडन आपको प्रॉब्लम आ सकती है। So when you talk about the screening part of it, what is the ideal age की population में heart related screening चालू कर देनी चाहिए, especially for those जिनको ये genetic issues है? बिल्कुल। सो इसमें 2 तरह के इश्यूज आपने बताया। एक तो पॉपुलेशन स्क्रीनिंग, जिससे कि पता चले कि हार्ट फेलियर होगा कि नहीं किसी बंदे को। just to know कि उनकी तो heart आप healthy है आपका फर्स्ट थिंग इज दैट एटलीस्ट वंस इन योर स्कूल एज 11th and 12th, तभी आपको, क्योंकि मोटापा काफी ज्यादा है। स्कूल स्टडीज हैव शोन 60 to 70% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव ओबेसिटी। यू कैन इमेजिन इन इंडिया, दिस इज इंडियन स्टैटिस्टिक्स। सो अब आपको एटलीस्ट स्कूल लिविंग में भी आपको एक बार टेस्ट करना है, भाई आपका ब्लड प्रेशर क्या है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, और वेट क्या है, शुगर, ये 3-4 चीज नॉर्मली टेस्ट हो सकता है। And maybe every 5 years you need to check your cholesterol levels between 20 years and 40 years of age. 5 साल में 4 साल में एक बार चेक करें चलेगा, 30s में 3 साल में चेक करें, 40s में आप हर 2 साल में चेक करें, मगर above 50 आपको हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेक करना। So that's how you can find out the risk factors for heart failure, pressure, sugar, cholesterol,
मोटापा, वेट चेक करना है, ये And चीज़ है। someone who has genetic history? अब आपने कहा जेनेटिक हिस्ट्री एक छोटा सेगमेंट है थैंकफुली, जैसे कि हार्ट फेलियर, अगर आप हार्ट फेलियर के बारे में बात करिए, हार्ट फेलियर हो सकता है जिनमें से कुछ कंजेनिटल यानी कि जन्म से ही ये प्रॉब्लम होता है, तो इनको जो हार्ट फेलियर का जो डिजीज है काफी पहले आ जाता है, इन 15-20 साल के 25 साल की उम्र में ही आ जाता है कि भाई स्कूल में वो खेल रहे हैं तो हाँफ जा रहे हैं, सर चक्कर दे रहा है कुछ परिश्रम करने में, तो ये चीज है। तो इसमें कभी कभी जो स्कूल टीचर्स है उनका बड़ा रोल रहता है कि भाई ये उनको स्पॉट करना है कि ये बच्चा क्लास में ज्यादा एक्टिव नहीं है, खेल के दौरान वो उसको कमजोरी लगती है या हाँफ जा रहा है, तो इसमें क्या है कि डॉक्टर्स को रेफर करके टेस्ट करना है, ईसीजी को कार्डियोग्राफी, ये सब टेस्ट करके पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ आई मीन यहाँ पे अवेयरनेस से जरूरी है, खासकर जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अवेयर रहना है ऐसे केसेस में। ये ब्रेथलेसनेस इतनी लाइटली नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एंड यू नो कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ इज कि व्हाई अर्ली 30s लेट 20s पॉपुलेशन में इतनी इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेलियर क्यों बढ़ते जा रहा है? ये कुछ तो अगर आप कंपेयर करें आज से 25-30 साल पहले तो ये ऐसा तो नहीं था, इट वाज द डिजीज ऑफ एल्डरली, बट अगर लेट 20s हम लोगों ने हार्ट अटैक 20 साल 24 साल में भी एंजियोप्लास्टीज की है, माय गॉड, चिल्ड्रन, बच्चों के या यंग अडल्ट्स के। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, एक तो डाइटरी हैबिट्स चेंज है, एक तो आप देखें कि भाई हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं तो उबर कर लेते हैं, ओला कर लेते हैं, मतलब जो भी आपके जो चलने का आदत कम हो गया है, हमारा डोर स्टेप सर्विस है, ऑनलाइन फूड होटल्स है, एक तो उसका प्रॉब्लम है, एक तो आप खुद से खाना बना नहीं रहे हैं, और दूसरा है कि थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है अगर बाहर से आप खा रहे हैं, यू प्रॉब्ली टू इंक्रीज द टेस्ट यू हैव टू ऐड ऑयल्स, और सॉल्ट इंटेक ज्यादा रहता है, अगर आप घर में बनाए तो वो ऑयल भी उसमें भी कम ट्रांस फैट रहता है। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है कि डाइट एंड सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल हो गया है अभी के जनरेशन में, इन सब वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। साथ ही साथ वी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन इंडिया। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो ये सब तो कंट्रीब्यूट कर रहा है यंग एज इसमें। और जो एक बात डॉक्टर चेतन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत जरूरी बात है कि फैमिली हिस्ट्री, एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, यानी कि अपने पिताजी, माताजी और भाई बहन किसी में भी अगर हार्ट अटैक मेल रिलेटिव में 55 साल के अंदर हुआ या फीमेल रिलेटिव में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 65 साल के अंदर हुआ है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है उस बंदे के लिए कि उनको भी फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए उन सब लोगों को अवेयर रहना है और अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना, कुछ जो रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो भी करना है। That is true. So when we talk about the diagnosis part of it, अभी what are the recent advancements and कौन से ऐसे टेस्ट है जो हार्ट फेलियर को डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना है, डॉक्टर ही टेस्ट करेंगे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी आर द बेसिक टेस्ट। अब उनके बाद अगर उनको लगता है कि भाई ये इको में अगर हार्ट का पंपिंग कम आ रहा है, तब तो वो हो गया पंपिंग वाला हार्ट फेलियर, वो तो खैर प्रॉब्लम एरिया, वो तो दवाई भी देनी पड़ेगी। मगर एक जैसे मैंने बताया कि हार्ट फेलियर एक ऐसा हार्ट फेलियर होता है कि ब्लड, हार्ट को पहले ब्लड लेना पड़ता है लंग्स में, उसको प्यूरिफाई करना, ऑक्सीजनेट कर, फिर वापस ब्लड लेकर उसको फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना पड़ता है, प्यूरिफाइड ब्लड हर ऑर्गन से देना है। तो रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी, ब्लड को लेना भी एक फंक्शन है हार्ट का। तो उसमें इनिशियल अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको डिटेक्ट करने में एक चीज है, तो पेशेंट उसमें भी चलने में सांस फूलेगा, ब्रेथलेसनेस होगा, उस फेज में हार्ट का इको में पंपिंग ठीक भी रह सकता है। इस कंडीशन में एक केमिकल हार्ट सीक्रेट करता है अर्ली बिफोर हार्ट फेलियर डॉक्यूमेंट हो इको में, उसको कहते हैं बीएनपी, ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड। उसको बहुत इजीली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कुछ किट्स भी है, कुछ ब्लड टेस्ट भी है, जिससे अगर ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो और आपको माने चलने में सांस फूल रहा है और इको में हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, तब आपका हार्ट फेलियर इनिशियल स्टेज में शुरू हो गया है। इसको कहते हैं हम लोग हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी इको में प्रिजर्व्ड फंक्शन है लेकिन हार्ट फेलियर हो रहा है। अंडरस्टूड। सो आपके पास ऐसे कितने पेशेंट्स आए जो चलकर आए क्लिनिक में कि हार्ट में कुछ इश्यू हो रहा है, compared to सीधा लैंडिंग इन इमरजेंसी विद एन हार्ट अटैक? राइट, सो आप देखिए, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट मेरे तरह या फिर फिजिशियन के पास जो पेशेंट आ रहा है, तो एज फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट ये भी हम लोगों को जानना है कि कोई भी पेशेंट अगर प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री लेकर आ रहा है, तो आपको देखना है कि अर्ली हार्ट फेलियर हो रहा है कि नहीं, ये भी डिटेक्ट करना डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें से आपको ईसीजी करना है, जरूरत हो तो इको करना, और फिर बीएनपी टेस्ट जैसे मैंने बताया वो करना। अगर ये तीनों चीज में कुछ चेंजेस आ रहा है, बीएनपी अब नॉर्मल है, यानी कि आपको एटलीस्ट वो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन में अर्ली हार्ट फेलियर सेट इन कर गया, तो ये इसे आपको डिटेक्ट करना है, और उसके लिए दवाई भी अब आ गई है, वो देखने से वो सही भी हो जाएगा, ये भी चीज है। बट यूजुअली दिस पीपल लैंड अप इन इमरजेंसी ओनली।
नहीं, जो पेशेंट जिनका हार्ट फेलियर इको में नहीं आया है, हल्का है, इनिशियल स्टेज में है, जो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन वाला हार्ट फेलियर है, वो अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, करेक्ट, तब इनका हार्ट फेलियर जो जो सही था, इतना प्रेशर हार्ट में आ जाता है कि वो एकदम खराब हो जाता है। ओके, तो वो तब Okay. इमरजेंसी में जाएंगे। अदरवाइज अगर ये कॉन्करेंट कोई इन्फेक्शन या कोई स्ट्रेस अगर नहीं हो, तो इनका ये चलने में सांस का प्रॉब्लम होगा, ये होगा। तो इसके लिए दवाई लेना पड़ेगा। अगर ये डिटेक्ट नहीं किया गया टाइम, तब ये प्रोग्रेस धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि ये कैंसर की तरह है, तब ये रिड्यूस्ड हार्ट फेलियर में चला जाएगा, तब इसको मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाएगा, तब ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हार्ट फेलियर के लिए बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली पेशेंट को बचाना भी शायद मुश्किल हो सकता है आफ्टर फ्यू ईयर्स से 10-15 ईयर्स डाउन। सो वी ऑल थिंक कि जो हार्ट फेलियर है या हार्ट इश्यूज है वो एल्डरली में ही होता है। अभी समझो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं कितना भी स्ट्रेस ले लूँ, मुझे कोई हार्ट इश्यूज होने वाले नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक कि डज स्ट्रेस हैज अ रियली बिग इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट? जैसे अब हम वी टेक इट लाइटली बिकॉज राइट नाउ वी आर यंग। होपफुली डॉक्टर चेतना, अगर आपको हार्ट फेलियर होना नहीं चाहिए, तो ये सब इंटरव्यूज हमारा बंद हो जाएगा, जो सोशल रेलेवेंसी खत्म हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ये चीज जरूरी है, ये चीज अच्छा है। एक पॉइंट है कि यंग एज में फिर भी कम है, लेकिन जितना कम होना चाहिए वो नहीं है, इंडिया में फिर भी ज्यादा है। यस, इट्स बेसिक हार्ट फेलियर इज डिजीज ऑफ द एल्डरली। जितना एल्डरली में जाएंगे उतना परसेंटेज ऑफ हार्ट फेलियर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट हार्ट में सालों साल ये बढ़ता जाता है, इसलिए। मगर फिर भी यंग एज में, जैसे बताया कि वी हैव टू कीप ऑन harping the point that it's now the heart failure, heart attacks are increasing in the young age population, in the 20s and 30s. आपका कुछ जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो करना है। आपको हेल्थ के बारे में रियलाइज करना है कि भाई आपको चलना पड़ेगा। राइट, चलने की आदत, देखिए, एक तो अच्छा है कि जिम हम कर रहे हैं, बस सही तरीके से जिम करना है। भाई बॉडी बनानी तो अच्छी बात है, बॉडी बननी चाहिए, मगर आपको आपका मेन एम होगा हेल्थ को फिट करना, अपने को फिट रखना। करेक्ट, तो इसमें आपको करना क्या है कि भाई अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, बेस्ट चलना, आप एटलीस्ट 35-40 मिनट चलिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप जिम, आपको अच्छा लगता है तो जिम में कम से कम 15 मिनट आप ट्रेडमिल कीजिए एट अराउंड 6 to 6.5 स्पीड ट्रेडमिल में। और अभी जो हमारे पास एविडेंस आ रहा है कि वेट्स भी उठाना वो भी खराब नहीं है, उससे भी कैलोरी लॉस हो रहा है। करेक्ट, मगर आप अचानक आपको एक वायरल इन्फेक्शन से उठ के आए हैं, जो हम लोगों ने कोविड में देखा। अब अचानक जो एक्टर्स है, शायद उन्होंने वो जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज अचानक शुरू किया बिना कोई डॉक्टर्स के या ट्रेनर्स की मदद से, तो इससे क्या हुआ कि हार्ट इज नॉट ट्रेन्ड टू गो बैक टू द पीक लेवल्स। इससे क्या हुआ कि ये हार्ट फेलियर, सडन कार्डियक डेथ्स भी देखा है शायद बढ़ जाते हैं। बड़ा। Okay, and then talking about this, nowadays we have so much of social media availability. I'm seeing that younger population, even the population who are in 40s, राइट, रात भर ही बैठ के they keep on scrolling the reels. फिर रात भर जगने की वजह से they start feeling hungry, then junk food eating. I mean, that has become a cycle, and उसके साथ work from home additional. right. So hopefully it's not your problem. So you're trying it's to not. get I travel. your easy No. I sleep solution, on but time and anyway. So the point, it is the problem with now the younger Correct. generation. Yes. In the mid age group also, we are tending to check social media and to be in the mood. Sleep is very important. Yes. ये पूरा रीसेट करता है आपका केमिकल लेवल्स, बॉडी का है, हार्ट को, ब्रेन को, सबको ठीक करता है। तो as cardiologists, as people in the health, we have to say that at least 7 to 8 hours of sleep should be there, and at least 6 hours of non-disturbed sleep. तो अगर आपके लिए बहुत जरूरी है सोशल मीडिया देखना, आप देखिए, मगर आप अगर 12 बजे भी सो रही है, मतलब एक टाइम फिक्स कर लीजिए, भाई नेक्स्ट हर रोज 12 बजे भी सोना है। अगर 10 बजे नहीं सो पा रही तो 12 बजे, मगर 12 से 7 आप जैसे कि अनइंटरप्टेड स्लीप ले लें, तो फिर क्या है कि भाई आप इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। प्रेशर, शुगर डिलेड होता है ऑनसेट, अगर आपको आना भी है तो भी डिलेड आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड स्लीप, स्ट्रेस लेवल कम। जो पहले हम लोग देखते थे भाई घर वाले एक साथ मिलकर खाना खाते थे, ये अब गाइडलाइंस में आ जा रहा है कि अब हम लोग इतना इससे दूर चले गए हैं कि भाई इतना काम में मसरूफ है कि आपको ये देखना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कभी हफ्ते में एक दिन आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड के साथ आप डाइन करें, कहीं बाहर जाएं, कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड करें। कुछ इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो वो करें। मेरा इंटरेस्ट आप देख रही पब्लिक स्पीकिंग में है, तो मैं वो भी कर रहा हूँ 1 घंटे से। तो ये करना है जिससे आपको खुशी मिले। इससे क्या है कि जो बैड हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, गुड हार्मोन्स दे इंक्रीज, और इसका सीधा इम्पैक्ट, सबसे अगर पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हार्ट पर पड़ता है। ओके,
So now this was about the prevention और जैसे incidents अभी चल रहे हैं वो क्यों हैं and risk factors and symptoms, everything we have covered. Going to the patients who really are dealing with heart failure, we all know कि ये जो patients है इनका quality of life थोड़ा degrade होने लग जाता है and they start getting in and out of the hospital. You know, what is your management strategy for these patients? देखिए जो मेडिकल साइंस अगर हार्ट फेलियर जिनको लेकर डील करना है ये 3 चीज में डील करना है। एक तो कि पेशेंट्स का डेथ नहीं हो, डेथ को जितना डिले करें नंबर 1, हॉस्पिटलाइजेशन जितना कम हो और शायद सबसे जरूरी है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल वो लीड कर पाए। दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, यू नो। ऐसे नहीं कि आप हम लोग वी हैव टू ऐड लाइफ टू इयर्स रादर देन इयर्स टू लाइफ, इजंट इट? सो ये चीज है। तो इन सब चीज को आपको पहले तो डॉक्टर्स को देखना है कि भाई कितने लेवल का प्रॉब्लम है और उस लेवल के हिसाब से दवाई देनी है। अनफॉर्चुनेट अगर डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस हुआ तो कुछ डिवाइसेस हैं जो काइंड ऑफ पेसमेकर डिवाइसेस है जिसको भी हार्ट का पंपिंग को भी इंप्रूव कर सकता है। तो ये सब फैसिलिटीज काफी इवन तो एंड स्टेज तक भी ट्रीटमेंट है जिससे कि हम लोग थोड़ा रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह बट थोड़ा रिवर्स भी कर सकते हैं हार्ट फेलियर का प्रोसेस। ओके, सो द पेशेंट कैन रियली लीड अ नॉर्मल टू हेल्दी life, normal to healthy life lead kar sakte hain with medicine. That's true. So medicine also they have to take it daily. I mean, that's correct. Lifelong. See, most of the medicines have a 24-hour action. तो ये जानना जरूरी है पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को कि भाई आप अगर दवा खा रही हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अगर सिम्टम्स इंप्रूव कर गया तो आप अगर दवा बंद कर देनी किसी कारण से, घर में शादी है तो 1 हफ्ते में दवाई नहीं ले रही हो, चलो ठीक है, पूजा है तो भाई चलो कोई बात नहीं, भगवान है 5 दिन मैंने दवाई नहीं ली, ऐसा नहीं है। दवा का इफेक्ट 24 घंटे तक है। और 24 घंटे बाद वापस वो हार्ट को दवा नहीं मिल रहा है तो हार्ट का पंपिंग कम होने लगेगा। तो दवाई आपको किसी हालत से बंद नहीं करनी। दवा का चेंज होगा अगर वो डॉक्टर्स करेंगे। ओके, खुद से ना बंद करनी है और ना ये चेंज तो करना नहीं। So when you talk about these medications also now, you know, there is this, I don't know if it is true or not, but then supplements like fish oil, antioxidants, then there's magnesium and K2 supplements बोलते हैं कि you should take it daily for maintaining a good heart health. कि अगर आप सही डाइट फॉलो करेंगे विच हैज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट में करते हैं फिश एंड चिकन ले सकती है, रेड मीट्स मिनिमम अगर लें, अल्कोहल इनटेक ना करें या फिर अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एकदम कम, स्मोकिंग बंद रखें, तो ये डाइटरी हैबिट्स लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉलो करें तो बहुत सही रहता है। एज कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास कोई ऐसे मेजर एविडेंस नहीं है कि फूड सप्लीमेंट्स लेने से कुछ फायदा होता है। सो दवाई लेनी है बिकॉज दवाई का भी नो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से हार्ट फेलियर को वो प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं करने। और खासकर जो एक और मैं बात करना चाहूंगा, जिम में जो लोग स्टेरॉइड्स तो खैर वो तो एकदम स्ट्रिक्ट नो है, वे प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, इसको अवॉइड करें अनलेस एंटिल अगर आप कॉम्पिटिटिव जिमिंग में जा रहे हैं तब ट्रेनर रहता है, हेल्थ के लोग रहते हैं जो कि गाइड करते हैं, अदरवाइज अवॉइड इट। इससे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। आप नॉर्मल प्रोटीन इंटेक, अंडे का सेवन करें, चिकन है, फिश है, प्रोटीन लें, अगर जो वेजिटेरियन डाइट में है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, तो आपको ये करना, स्प्राउट्स लें जिसमें कि प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, वो लें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। एंड देन व्हाट डू यू थिंक कि जो ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स है सबसे ज्यादा चैलेंजेस डेली रूटीन में, व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच दे फेस? देखिए हार्ट फेलियर एक तो एक प्रॉब्लम है, उनको एक पता है कि हमारे कोई डिजीज है जो कि प्रोग्रेस करेगा, तो ये एक डिप्रेशन, एक इमोशनल इश्यूज होता है। मगर अगर हम इनका सिम्टम्स अगर ये दवाई से ठीक से ले रही है, अगर इम्प्रूव हो रहा है तो फिर ये ठीक है। तो ये सिम्टम्स को रिलीव करना नंबर 1, उनका जो नॉर्मल लाइफ है वो सही से चले, वो जो काम करें वो डिस्टर्ब नहीं हो, उनको ऑक्यूपेशन, अर्निंग, ये सब चीज सही हो, तो ये तो दवाइयां से होंगी। दवाई सही टाइम से खाना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्द डॉक्टर्स कंसल्ट करना, तो ये चीज है। और जहां तक है हॉस्पिटलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। अगर आप रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन या एक भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है इसमें हार्ट फेलियर वर्सन हो रहा है, तो उस पेशेंट पर डॉक्टर्स को ज्यादा ध्यान देना है, दवाइयां बढ़ानी पड़ेगी, डोज बढ़ाना पड़ेगा, उनको फ्रीक्वेंटली विजिट्स के लिए आना पड़ेगा, तो ये हमें ध्यान रखना। So all we can work on कि कैसे वो सिम्टम्स में इम्प्रूव कर पा रहे हैं। हाँ, एक तो सिम्टम्स है, डॉक्टर्स जो है साइंस देखते हैं, और फिर इको पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी जो करते हैं हार्ट का, वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है। Should they live with this truth कि I don't have like really long years with me right now and this is how I am supposed to accept it and live? ये तो ऐसा है नहीं। आप अगर, मैंने जैसे कहा कि दवाइयाँ इतनी अच्छी सी दवाइयाँ हैं अभी कि इफ यू टेक दोज मेडिसिन्स यू कैन इवन रिवर्स टू सम एक्सटेंट हार्ट फेलियर का प्रोसेस, जिसमें हम लोग इको में भी देखा है कि इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर ये इम्प्रूव हो रहा है तो और दवाइयां ले रही तो नथिंग लाइक, हताश होने की बात नहीं है। दवाइयां लेनी है, वेरी मिनिमम परसेंटेज जो और वर्सन हो रहा है इवन ऑन मेडिसिन, उनके लिए तो डिवाइसेस भी हैं जो कि हम लोग बैठा देते हैं,
जिससे कि हार्ट फेलियर इंप्रूव हो जाता है. Okay. So, sir, are there any recent advancements which really have come up in treating the heart failure? लास्ट 20-25 ईयर्स से हार्ट फेलियर के फील्ड में काफी सारा एडवांसमेंट हो रहा है. डिटेक्शन में जैसे मैंने कहा बीएनपी टेस्ट हैं और भी टेस्ट हैं, प्लस जो है कि आपका जो दवाइयों में हर 2-3 साल में एक नया ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ रहा है जो कि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को एटलीस्ट सिम्टम्स को इम्प्रूव कर रहा है, प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर रहा है. ये है डिवाइसेस आ गई, तरह तरह के डिवाइस जो उसको इम्प्रूव कर रही हैं. एक मेजर कॉज ऑफ हार्ट फेलियर हार्ट अटैक है जिसका बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट हो जा रहा है. हमारे कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, कई स्पोर्ट्स पर्सन जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिन्होंने एंजियोप्लास्टीज कराई हैं और वो नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं. Correct. तो ये तो है, हमारे पास एविडेंस है. So everything just revolves around a good lifestyle, taking your medication properly, doing routine screening. एकदम, ये तो अब बहुत रेलेवेंट है. देखिए देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कि सभी को जॉब करना है, उस जॉब की भी स्ट्रेस है, टाइम लाइंस है. भाई ये तो वैसा नहीं कि 9 से 5 आप काम करके घर वापस आ गए. अब तो काम की कोई सीमा नहीं है, आप तो शाम को भी रात को भी काम करना है. तो इसको आपको अपने लिए टाइम देना है. 1 घंटा निकाल लीजिए डेली. आप जिम में जाएं, वॉक करें, डाइट सही रखें, चलें. अगर जरूरत हो कि सेकंड थर्ड फ्लोर में है अगर आप है तो आप सीढ़ियों का यूज करें रादर देन लिफ्ट. तो ये चीज एक माइंड में रखना. और खाना जो खा रहे हैं कम कम बार बार खाएं. ज्यादा एक साथ खाएं. ज्यादा एक साथ कैलोरी इंटेक किया, अगर आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं that might be converted into fat in the body, extra calorie. तो ये अवेयरनेस अगर रहेगा तो फिर ठीक है, मगर you don't get hyper about it. कुछ लोगों को हम देखते हैं कि भाई ये तो सारा दिन उसी को लेके बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जो चीज खा रहे हैं जिसको हम लोगों ने कभी सुना नहीं, ग्रीन टी, ब्लैक हाँ, बट अब ये तो हमारे देश का फल नहीं है भाई. आप हमारे देश में इतने अच्छे सारे फ्रूट्स हैं जो कि इजिली अवेलेबल, उनको खाइए. फ्रूट्स खाना है तो ऐसा नहीं कि फ्रूट्स पर ही डाइट करना है, सबको वेजिटेबल फ्रूट सबको लेकर चलना है. अब आप ग्रीन टी पी रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात होगी भाई. ग्रीन टी से जो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपको मिल रहा है थोड़ा सा, उसको तो और भी कुछ साइड इफेक्ट्स होता है. इट कैन बी रिटर्न टू योर स्टमक, गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ा देता है. तो ये सब चीज को इन मॉडरेशन, लाइफ शुड बी इन मॉडरेशन. ये भी एक डिक्टम अगर रह जाए अपने पास तो भी ठीक, कोई एक्सट्रीम में मत कीजिए. अब आप जिम जा रहे हैं तो 2 घंटा जिम कर रहे हैं, आप इतना वेट्स उठा रहे हैं कि आप उसी में फटीग हो जा रहे हैं. एक्सेस नहीं करना है कुछ भी. Just that you have to really choose what you're doing. You have to choose the middle path. Choose right, like take the step rather than elevators. That is where the option lies. Right. So coming to the closing part of the episode today, as we know कि incidence अभी इतना बढ़ गया है कि 1 in 5 को heart failure यानी heart related disease होने के chances incidence काफी बढ़ चुके हैं. So, on the occasion that is why we have this occasion of World Heart Day. What is an important, powerful mantra that you would like to give to the patients as well as their families to manage the heart conditions? Okay, if you ask a mantra, it would be, if you want the nation to progress, you have to save your heart. Correct. देश को आगे बढ़ाना है तो अपने दिल को बचाना है. And then how could you help them to manage, the families as well? See, it's all about every individual has to be aware that ये heart related जो diseases so common हो गया है और इससे कभी भी कुछ भी हो जा रहा है. यंग एज में भी 30-40 साल में अचानक सडन डेथ्स हो रहे हैं. तो ये एक अलार्मिंग प्रोपोर्शन में चला जा रहा है. लेकिन जो अच्छी बात है कि अवेयरनेस जैसे आपके चैनल स्प्रेड करना चाह रहे हैं और भी हर तरीके से ये अवेयरनेस रहना है कि हमें फिजिकली फिट रहना है, डाइट सही रखना है. कुछ सिम्टम अगर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने डॉक्टर्स को पहले ही कंसल्ट करना है, जो कि पहले नहीं था, आज से 10-15 साल पहले. Correct. And as well, ये जो heart failure है, ये long term में takes a big toll on the family as well. मतलब patient तो suffer करता ही है, along with them the family also starts suffering. So how can they become like a big support for the patient? देखिए हार्ट फेलियर अगर फैमिली में है तो डेफिनेटली इट्स बिग स्ट्रेसफुल थिंग, और खासकर अगर अर्निंग मेंबर फैमिली का है तब तो खैर बहुत ज्यादा लॉसेस है. मगर फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है कि उनको डिटेक्ट करना है कि ये बंदा जो हमारे साथ है इसका सिम्टम्स वर्स हो रहा है कि नहीं, वेट गेन ज्यादा हो रहा है कि नहीं, पैरों में सूजन हो रहा है कि नहीं. ये सब सटल चीज को देखना पड़ेगा जो फैमिली मेंबर्स भी असेस कर सकते हैं. और पेशेंट को बार बार कहना कि आप भाई रोज दवाई ले रहे हैं कि नहीं, दवाई का रैपर देखना है कि भाई वो दवाइयां यूज हो रहा है कि नहीं, और डॉक्टर्स के पास लेकर जाना टाइमली जैसे एडवाइस्ड है. ये फैमिली का रोल है. So I have a very quick segment which says that add years in seconds, because this is like tips which we will be sharing to the population, which is in seconds, and this will help them to lead good years in their life. Can we start? So first one is what's the best heart healthy cheat snack? It would be say cornflakes. That is better. That is good. Okay. Climbing stair is as good as cardio. Oh yes. Then skipping meals helps reduce cholesterol. Wrong. No. Take meals at repeated intervals better than skipping meals. Okay, so उससे कुछ cholesterol में changes नहीं आते actually. You have to take the medication. No, healthy meals, small proportions repeated is better than skipping meals. Skipping doesn't
help. Okay. We often see reels saying walk 10,000 steps daily to avoid a heart attack. Is this number real science or just a myth? 10,000 एक फिगर दिया गया है कि you need to follow it, ये दिमाग में रहे जैसे. But whatever you can do in a every day you do, but at least 30 to 40 minutes walking. Those above 40 years of age, it's mandatory probably. What are subtle symptoms of heart disease people often ignore until it's too late? अपने फ्लोर में जाने में ब्रेथलेसनेस होना, इजी फटीग हो जाना, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं. उसके बाद अगर इतना प्रॉब्लम हो गया कि भाई घर के छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं, इफ यू टेकिंग बाथ, तब ब्रेथलेस हो जाते हैं, तब वो आते हैं. Can anxiety or panic attack be mistaken for a heart attack? How can we tell the difference? If chest pain is occurring and you're getting sweats and palpitation and you're getting dizzy, you take it as a heart attack rather than anxiety. Understood. If someone has family history of heart disease, what's the one habit they should adopt right now? Walk, eat healthy. That's 2 habits. What's the one thing you wish every 20 or 30-year-old knew about protecting their heart? Avoid bad habits, which include smoking, sedentary lifestyle, not walking much, all these things. So gas pain versus heart attack pain differentiation? अगर जो दर्द चलने में बढ़ता है वो हार्ट अटैक, वो हार्ट का पेन है. Okay. और जो दर्द सिर्फ बैठे वाले पोजीशन में हो रहा है, चलने में बढ़ नहीं रहा है, वो गैस का पेन होने का चांसेस है. Okay. चलने में दर्द नहीं हो रहा है. चलने में दर्द नहीं. Okay. चलने में दर्द जो बढ़ रहा है वो हार्ट का पेन. Okay. Okay. So just a 1-minute heart hacks. Walk and spend time with your friends. Yes, like pursue your hobbies. Yeah. Go to your friend's place walking. That would be that. So thank you so much for joining us today and helping us spread this awareness on the occasion of World Heart Day. It's been really a pleasure to have you on our episode, sir. Same here, my pleasure too for having me. So to all our listeners, आज के एपिसोड से हमने ये समझा कि आपका हार्ट हेल्थ आप ही के हाथों में है. So don't wait for the warning sign to make the right choice. After all, it's one life and every beat matters. So if you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram. It's One Life by Mankind Specialities. Until then, stay informed, stay healthy.